and welcome. You're watching Doctor Speak. It's a 1 hour long call-in show where you can call us and ask your questions related to COVID-19. An expert panel of guests is going to join us very shortly. There are two numbers that will be flashing on our screens. You can take them down and you can call us on those numbers to ask your queries. You can also post your questions on DD News' Facebook page under the live link that you'll be able to see. I'm Munmun Bhattacharya and with me is my colleague Raman. शुक्रिया मुनमुन। नमस्कार आप सभी को और सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक लेकर। इस अगले 1 घंटे में आपके मन में कोविड-19 से लेकर जो भी जुड़े सवाल हैं आप हमें कर सकते हैं। डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आप जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया से हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक लाइव पर हमसे बात कर सकते हैं और डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम परिचय कराते हैं। डॉक्टर रूपाली मलिक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। डॉक्टर नरेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेडिकल कंसल्टेंट MAMC। और डॉक्टर पुनीत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स। आप तीनों डॉक्टर्स का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है और आपको भी विजयदशमी की बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर रूपाली, अगर आपसे हम शुरू करना चाहें, आज दशहरा है और जिस तरह से लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि विशेष सावधानी, क्योंकि ये जो आने वाला महीना है ये त्योहारों से भरपूर है, किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है और किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने परिवार का भी, विशेषकर कोविड संक्रमण को देखते हुए? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि आगे का त्योहारों का अगले 1 महीने तक आए दिन एक ना एक त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे, तो इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि त्योहार के समय जब हम दूसरों से मिलते हैं तो हमें सोशल वैक्सीन यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, कफ एटिकेट्स और हाथों को लगातार धोते रहना, इन सावधानियों का सदैव ध्यान जरूर रखना है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आने वाला समय जो कि सर्दी का समय है, मौसम बदलने का समय है, वो वैसे भी रेस्पिरेटरी इलनेसेस के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल समय माना जाता है। जो कोरोना के अलावा जो बाकी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं वो सभी भी इस समय काफी तेजी से बढ़ती हैं, तो हमें विशेष ध्यान रखना होगा इस समय पे, त्योहारों के समय पे जब आप घर से बाहर निकलेंगे, दूसरे लोगों से मिलेंगे, तो सावधानी तो वही है जो हम शुरू से बताते आए हैं, मास्क पहनना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। Dr. Naresh Gupta, how would you convince kids to take care to stay indoors mostly? Because we are aware that in the SOP that the Health Ministry has issued, kids under 10 are supposed to celebrate at home just like the elderly who are more vulnerable. See, if we are very practical, then we must accept that kids under 10 would not want to stay indoors now. Especially when you have festive seasons coming in, and we have these festive seasons starting from Onam that we had, Ganesh Chaturthi we have, Vijayadashmi we have, Diwali we'll have, Guru Purab we'll have, Christmas we'll have, New Year's we'll have, in between we have Eid in another week's time, 10 days time. So if we have so many festivities going around, to expect that kids or anybody would just stay indoors is difficult. So I think we can tell them, but we have to be practical. And in case we can't manage that, we should be prepared that if they are out, they should indulge in those preventive measures that are more important now that the festivities will bring in a lot of crowd. So there are two kind of issues that come in here. One is pre-festivity days, like now you are doing shopping for Diwali or Eid or whatever. If you are going to do those shopping, please don't take them with you, because all the places where you're going to do the shopping are so crowded that children under 10 or even sometimes I see adults, they don't even put on their mask properly. And the places you will go will be so crowded that it will be very difficult to maintain social distancing. Another important aspect, whether it is children or otherwise, whatever time you spend outside in the market or in the groups or in the meetings or in the celebrations. So let's take the marketplace. It gets cumulative. So we used to think that 15 minutes if you spend there, that becomes risky if it is a crowded place with poor ventilation and where there is no social distancing.
Now that 15 minutes could be combined over a period of hours. So it's not necessary that it should be in one go. The point being that if there are children or there are elderly or whosoever, even I should say even the healthy adults, they should leave house for minimum duration. You can't avoid it, I can understand. But if you're spending time, don't go on bargaining or haggling or seeing many things. Just take whatever you need and come back observing the social distancing to the extent possible. But proper masking is very important. Do the proper masking. When you come back, depending on your circumstances, you can take bath, you can do the soap wash of your face and hands and change your clothes or mask. So do those. Do the same with the children. So children are likely to be enjoying it. We can't make these festivities more difficult for them. So let us accept it that it will be difficult to keep them indoors, but whenever they are outdoors, keep them in an open ventilated area. If it's an open ventilated area which is not crowded, it's quite all right with them. Let them do it. They have their mask on, that's fine. Fair enough. So those So are I the think precautions everybody that you've should observe outlined. those precautions, including the children. Okay. Yeah. बिल्कुल। और दर्शकों के सवाल आने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ फेसबुक लाइव से पंकज नाग जुड़े हैं और वो पूछ रहे हैं कि डज एसिम्प्टोमेटिक कोविड रिजल्ट इन एनी काइंड ऑफ इंटरनल डैमेज टू लंग्स और एनी ऑर्गन। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, आप जवाब देना चाहेंगे अगर आप इनका सवाल समझ पाए हैं? I think he has asked what I could understand, that whether asymptomatic patients who have the asymptomatic, are they at the risk of internal organ damage because of COVID? Is that the question? Yes, sir. Okay. Most of the asymptomatic cases, they are mild or they do not show any symptoms. But as you know, I mean, we have very limited knowledge about the virus, and the studies they are going on about the long-term effect of these viruses. It has been seen that those who have affected with the virus, many of them, they have some sequelae which are after they are recovered from the COVID. So what I would say, those who are asymptomatic, probably they have gone through very mild disease, so that there were no symptoms. But still, we don't know much about the long-term sequelae. So my suggestion would be here that it is better to protect yourself, and although asymptomatic, very mild, and they don't have any apparent disease at this moment of the time, and most probably they will not have any sequelae, but we don't know. The knowledge is not that conclusive at this point of time. That is my thinking on this. Okay. Dr. Rupali, some instances have come to the fore where people who never tested positive have developed post-COVID issues. We'll take that up later, but there's Colonel Jain who's joined us from Indore as a caller. Yes, Colonel Jain, please ask your question. People who are asymptomatic. We couldn't hear you. Could you please repeat, Colonel Jain? There are people who are asymptomatic, and if we come in contact with them, we don't particularly know whether they are positive or negative. What are the chances of getting infected? Dr. Rupali? Yes. Can you please repeat the question for me? It was not very clear. Okay, so the caller is asking that if you come in contact with someone who's asymptomatic, then what are the chances of contracting infection from that person? Yes. The chances of contracting infection from asymptomatic is similar to that of symptomatic, though slightly less, but still you have similar chances. That is why we always say that with every person whom you are meeting outside your house, you have to maintain the 3 standard precautions: social distancing, wearing a mask or the cuff etiquettes, and washing your hands or sanitizing your hands regularly. Because even from asymptomatic individuals, the chances of contracting the infection is as good as the symptomatic individuals. Though in symptomatic phase it is even more, but even the asymptomatic can very well transmit the disease on to you. So you have to take those similar precautions with anyone and everyone whom you are meeting outside your house.
बिल्कुल प्रिकॉशंस जो हैं वो सेम होने चाहिए। इसके अलावा जो बहुत से सवाल हैं वो लंग्स को लेकर हैं कि लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो कितना सीवियर हो सकता है, या किस तरह से लंग्स को बचाया जाए, इंटरनल इन्फेक्शन है। और हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से फेस्टिविटी भी है और जो मौसम है वो भी बदल रहा है, सर्दी आ रही है, इसके अलावा पोल्यूशन की समस्या है जो वो इस टाइम में होती है, तो ऐसे में लंग्स को संक्रमण का खतरा जो है कितना ये सेंसिटिव होता है, कितना बढ़ जाता है और किस तरह से इसको बचाया जा सकता है? देखिए, जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो चेंजिंग वेदर है, this is a very important time for us to get affected with so many other respiratory problems. It can be pollution related, it can be related to various other viruses like the influenza virus, various non-influenza respiratory viruses. So there are n number of viruses which tend to affect your respiratory system during this time of the year. So it is very important that you take adequate precaution. Do not step out of your house if it is not required, and especially in the early morning hours when you are more prone to develop symptoms due to pollution. The polluted air is going to affect your lungs, so it is better to avoid going out for walking in the morning hours. So early morning hours, you should better avoid going out of your house if it is not needed, and otherwise also keep doing the lung exercises in the form of yoga, pranayama, anulom vilom. I think they are much better forms of exercises for your lungs than anything else. Always eat healthy, try and do meditation, and also do regular yoga, the anulom vilom, pranayam. They are really going to help your respiratory system, the upper respiratory tract as well as the lower respiratory tract. That is one of the most important. And also take the haldi doodh, the natural forms of herbs which are protective and they are kind of immune boosters for our system. Dr. Naresh Gupta, earlier I was referring to how people who've never tested positive are turning up with post-COVID issues. That we come to know because the RT-PCR is negative, but antibody tests come positive. A CT scan shows typical COVID-like features. What should such people do? It depends on at what stage are they coming to us. So one of the problems that we are facing is the rapid antigen test, when it is done, can be falsely, it is positive only in 1/3 of the cases, 30 to 40% of the cases. So the rest are missed out. So the policy of the government is, in case it is negative and person has symptoms, we shall go ahead and do RT-PCR. But what I am observing, many of the persons, the public, the workers, they think my test was done, it was negative, what do I do? That means I don't have COVID. Whereas the involvement of the lung on CT scan or any imaging is very high. In fact, in our Lok Nayak hospital, we would have done more than 1,000 CTs on more than 1,000 persons. And you would be surprised that large number of them, probably to the extent of 80-90%, would have some kind of involvement. Now, if that is done, remember, there was also a question, if it is asymptomatic, can I get it? All the lung involvement will not result in symptoms necessarily. God has given us, nature has given us 2 lungs. We need one for survival. One is buffer. So if there is a small patch, it may not produce the symptoms. So it would depend on when is this imaging or CT or lung functions or is symptoms deciding. Is it after a few days? Is it after a few weeks? Is it after a few months now? Now, as the time passes by, these damages tend to become more resident within the body. If it is early, then treatment can be taken. Also, it is not only the virus that is damaging the lungs. There are at times infections on top of the viral infection for which treatment may be available, like the bacterial infections. Now, if that is the case, it must be treated. Also, you would see, despite all our efforts, smoking is still a big problem. And smoking causes something called winter bronchitis, chronic bronchitis, that causes cough and damage. Now, it may be just incidental that it has been there over the years and it comes to the forefront. They get bronchiectasis and infections come up. They come up as it is. So it could become very difficult just by hearing it that these symptoms came from COVID and not other diseases. That means these persons should stop smoking also.
Thirdly, there are very good vaccines available for preventing the infection of the lungs. They are given even before the COVID times, and they would be given even after the COVID times. So whether there is a pneumonia from a pneumococcal infection for which there is a good vaccine, or influenza, or for children we had measles and hemophilus, there are so many vaccines that can be given for this prevention. So in case anything comes to the notice that there is a damage which is post-COVID and the COVID was negative, please make sure that there is nothing else you are missing out on which has got a treatment or which has got a preventive vaccination. बिल्कुल इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और एक दर्शक और हमारे साथ फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, हमारे साथ अमित उपाध्याय हैं, जिनका प्रश्न है कि जिस तरह से सर्दी आ रही है और लगातार कहा जा रहा है कि कोविड के प्रिकॉशंस में कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऑफिस से आने के बाद बात लेना हर बार। और ये पूछते हैं कि क्या अभी भी जो वायरस है उसका जो हेयर पे, बालों पे सर्वाइवल रेट कितना है, अगर वो सर्वाइव करता है तो बिना बात लिए किस तरह से उसे क्लीन किया जा सकता है, या कैसे अपने आप को ये सुरक्षित रख सकते हैं? डॉक्टर पुनीत मिश्रा जी, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है हमारे दर्शक ने। देखिए कोविड अभी गया नहीं है और इस चीज़ की आशंका बहुत ज़्यादा जताई जा रही है कि सर्दियों में शायद इसका इन्फेक्शन और ज़्यादा होगा, क्योंकि सर्दियों में हम खास करके देखते हैं जो रिस्पिरेटरी वायरसेस हैं उनका प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। दूसरी चीज़, लोग इंडोर ज़्यादा रहते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यूरोप में दोबारा से केसेस बढ़ने काफ़ी स्टार्ट हो गए हैं, तो आशंका है कि शायद हमारे देश में भी ऐसा ही होगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, हमारे साथ जो को पैनलिस्ट हैं उन लोगों ने भी इस चीज़ को बार बार बताया है कि हमें जो भी प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि यूनिवर्सल मास्क यूज़ है, हाथों को धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब हमारे ये दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है और किस प्रकार से हम हर समय बात नहीं ले सकते हैं, तो हम किस प्रकार से अपने आप को बचाएं। बहुत ही उपयुक्त आपने सवाल पूछा। देखिए मैं यही कहूँगा कि जब भी आप बाहर निकलते हैं तो कोशिश ये करें कि लोगों से आपका जो डिस्टेंस है कम से कम 2 गज की दूरी आप बना के रखें। आप अपना जो मास्क है उसको ना हटाएं, मास्क का यूज़ करते रहें, और किसी भी जो सरफेस को अगर आप छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो अपने हाथों को बार बार साबुन से साफ करते रहें या सैनिटाइजर से साफ करते रहें। इन सारे प्रिकॉशंस को अगर आप लेते हैं और घर आके अगर आप स्नान नहीं कर सकते हैं, और अगर आप अपने जो कपड़े हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ थी और आपको लगता है कि वो कपड़े ऐसी जगह एक्सपोज हुए, तो जरूर उन कपड़ों को हटा के जो घर के धुले हुए कपड़े हैं उनको पहनने का आप प्रयास करें। उससे आप काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। There's another question that's come in on our Facebook page. Sunil Kumar is asking, how effective are air purifiers when it comes to protecting your lungs, especially when it comes to PM 2.5 pollutant? Dr. Rupali? Yes. Air purifiers, they are helpful, though I will not say they're 100% helpful. But if you can afford them and if you can use them, they are helpful to a certain extent. So if you have it if you have it at your home, then you must be using it, and especially during the morning hours and the evening hours while you're sleeping. That time if you use it, this is even more effective. And during the daytime, you can depend upon the natural ventilation. So during the night and the early morning hours, especially when you're sleeping, you can use the air purifiers. They are helpful. And if one leaves the house after using air purifier and then comes back and uses it, will he stay protected, he or she stay protected, or will he or she is still vulnerable? Because you can't take your air purifier everywhere you go. Obviously. So that is a limitation, as we have limitations to so many other things. So at least when you're sleeping, those 12 hours when you're definitely inside the house, you can have a rest. You can give your lungs some rest from the pollutants. So at least those 12 hours of your life can be peaceful. Rest, you cannot help it if at all you have to go out. So that is definitely a limitation. बिल्कुल, बहुत सारे उपाय हैं लेकिन बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं, और उसी के बीच में तय करना है कि किस तरह से ज़्यादा सतर्क रहा जाए। सतर्कता ज़्यादा बेहतर उपाय है। और जिस तरह से हमारे देश में लगातार जो कोविड रिकवरी का रेट है वो बढ़ता जा रहा है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 62,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। विश्व के अन्य देशों की तुलना में रिकवरी रेट हमारा बहुत अच्छा है।
लेकिन जिस तरह से सर्दी के चलते या अन्य देशों में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सतर्कता बेहद ज़रूरी है, जिससे यहाँ पर नियंत्रण की रफ्तार जो है वो लगातार मेंटेन रहे। डॉक्टर गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से क्या कुछ उपाय जो हैं बहुत अधिक सफल रहे हैं हमारे देश में कि हम इसके नियंत्रण की रफ्तार को अभी तक कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहे हैं, और उन्हें ही किस तरह से आगे बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो पिछले 8 महीने गुजरे हैं उसमें हमने बहुत लेसन सीखे हैं। एक तो ये कि जितने उपाय हमने करे उसमें से कुछ ज्यादा सक्सेसफुल हुए, कुछ कम सक्सेसफुल हुए, लेकिन हमने फिर भी इसको बहुत अच्छी तरह मैनेज करा। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक नया वायरस नए रूप में आया था। वायरस से पुराना है, 60 साल पुराना इंसान को हमारे साथ झेलता रहा है, 3 बार रूप बदल चुका है, तीसरी बार है। लेकिन जब ये नया रूप बदलता है तो किसी को जानकारी नहीं होती कैसे फैलेगा, ये क्या करेगा। इसलिए जो फैसला सरकार करती है वो अच्छा सोच समझ के करती है और आपको मान्य होना चाहिए और मान के चलना चाहिए। और कोई भी फैसला इमरजेंसी में करा गया क्रिटिसाइज नहीं हो सकता, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो मास्किंग हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, ट्रीटमेंट हो, वैक्सीन हो। तो इसमें एक चीज तो ये उभर के आई है कि इसका जो ये कोविड है ये हमें कुछ मैसेज दे रहा है कि ये इन्फेक्शन जो है खांसने से, छींकने से, बोलने से, थूकने से फैलता है, क्योंकि वायरस उसमें आ जाता है। और उसके बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, 2 गज, 3 गज, 4 गज, जितना ज्यादा उतना अच्छा, और मास्क जो है अच्छी तरह से लगाएं। इससे आपको सिर्फ इसी वायरस से बचाव नहीं मिलेगा, 100 दूसरे वायरस होते हैं जो कि फेफड़े में और गले में और नाक में जाते हैं, हर साल जाते हैं। आपको याद होगा कि जब भी मौसम बदलता है हर कोई कहता है मेरे को खांसी जुकाम हो गया। उनको सिर्फ वो रहता है जो उनके घर में होता है, लेकिन जो हमारे अस्पताल में दाखिल होते हैं उनकी जानकारी नहीं होती है, वो सब कम हो गए हैं। तो एक मैसेज इसने ये दिया है इसने कोविड ने जो हमको सीख दी है कि आप जो बचाव अगर मेरा कोविड से करेंगे तो मेरा बचाव बाकी और बहुत सारी इन्फेक्शन से भी होगा। दूसरा एक लर्निंग ये आई है कि जो बचाव है उसमें जो हमारी लाइफ जो है रफ्तार जीवन शैली की इतनी तेजी से बढ़ती जा रही थी, जिसमें लगता था कि रोक नहीं लग सकती है, रोक लगाने के बाद जीवन और जीवन शैली और जीवन स्वास्थ्य इंप्रूव हो गया है पहले से। अगर आप ग्रुप में नहीं जा रहे हैं, बहुत भीड़ भड़ा के इलाके में नहीं जा रहे हैं, खाना पीना बैंड बाजा ढोल ये सब नहीं कर रहे हैं, तो कोई आसमान नहीं गिरने वाला है, तो भी आपका स्वास्थ्य जो है और अच्छा रह सकता है और बीमारियां और कम हो सकती हैं। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी और मास्किंग की बात थी, ये हमें सिखा रहा है कि अगर आप ये करेंगे तो मैं आपको तंग नहीं कर पाऊंगा और मेरे साथी भी आपको नहीं तंग कर पाएंगे। एक तो बड़ी चीज ये अच्छी आई है। दूसरा ये कि जानकारी की ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसके लिए कि बचाव करना बहुत महंगा नहीं होता है, वो एक चीज और उभर के आई है। जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है उसमें ठीक आ गया है, और उससे ज्यादा एक महत्वपूर्ण चीज आई है कि अगर आप सैनिटाइजर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और साबुन पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो और ज्यादा कारगर है। देखिए, साबुन पानी जो इस्तेमाल करा जाता है वो अब हमें पता है कि 20 सेकंड में इस वायरस को खत्म कर देता है। Dr. Naresh Gupta, you are saying that it is important that one observes these precautions which have been emphasized since March, since we began our battle against COVID-19, even for good health in a generic sense. Well, there's a caller who's joined us, नरेंद्र कुशवाहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। जी पूछिए अपना सवाल। जी, क्या सुबह मॉर्निंग के वक्त समय हम टहलते समय क्या मास्क लगाना हमें चाहिए? डॉक्टर पुनीत जी, ये निर्भर करता है कि आप कहाँ पर टहल रहे हैं। अगर आपका ऐसी जगह आप टहल रहे हैं जहाँ पर और कोई व्यक्ति से आपका संपर्क नहीं है दूर दूर तक, तो आप बिना मास्क के आराम से टहल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे शहर में हैं जहाँ पर पार्क में अन्य व्यक्ति भी टहल रहे हैं, तो ये जरूरी होता है कि आप मास्क लगाएं, उससे आप स्वयं भी बचे रहेंगे और आप दूसरों को भी बचा के रखेंगे। जहाँ तक आप इनका सवाल प्रयागराज से आपने कुशवाहा जी पूछ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप किसी ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास अपना लॉन है, अपनी खुली जगह है या खेत है जहाँ आसपास दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं है, कम से कम 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर तक, तो आप बिना मास्क के रह सकते हैं। लेकिन जो जहाँ तक हमारे भारत के जो विभिन्न शहर हैं जहाँ पे पार्क
व्यवस्थित है, वहाँ पे आप देखेंगे सुबह के समय बहुत सारे व्यक्ति टहलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मास्क का अवश्य उपयोग करें, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतें और मास्क के साथ ही सुबह का अपना जो टहलने का कार्यक्रम है उसको जारी रखें। बिल्कुल सावधानी से ही जुड़ा एक और सवाल फेसबुक लाइव पर हमारे एक दर्शक ने पूछा है। देवदत्त विश्वकर्मा हैं और ये पूछते हैं कि इफ अ कोविड-19 पेशेंट रिकवर्स एंड टेस्ट नेगेटिव देन इज देयर एनी चांस टू गेट इन्फेक्टेड बाय हिम और हर? डॉक्टर रूपाली। हाँ जी, ये सवाल बहुत ही कॉमनली आजकल लोग पूछ रहे हैं कि छुट्टी हो जाने के बाद या नेगेटिव हो जाने के बाद भी क्या कोई रिस्क है कि हम अपने घर वालों को या अपने आसपास वालों को ये बीमारी दे सकते हैं। देखिए, अगर एक बार आप नेगेटिव टेस्ट कर चुके हैं तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप ये बीमारी किसी और को दे पाएंगे। बट फिर भी जब हम अपने पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं अस्पताल से, 1 वीक का एडिशनल आइसोलेशन या 1 to 2 वीक्स का एडिशनल आइसोलेशन हम फिर भी एडवाइस करते हैं टू बी डबली श्योर। तो जब आप डिस्चार्ज होते हैं अस्पताल से, आप नेगेटिव टेस्ट करते हैं, उसके बाद भी अपनी सावधानी के लिए आप 1 से 2 हफ्ते के लिए और थोड़ा आइसोलेशन मेंटेन कर सकते हैं। There's another question. Ganesh Dakwa is asking that he's recovered from COVID-19 and it's been 4 weeks now. He's saying that he still feels mild fever and body pain. What should he do? Dr. Naresh? See, Ganesh ji, agar 4 hafte, after 4 weeks, if he's still having fever and mild pains, first thing that we must address is whether it is the same virus that is going away. Now, the common notion that virus would go away within few days or couple of weeks is no longer applicable for COVID virus. It is not applicable for many other viruses also. So if he is having symptoms, there are cases who go on for weeks or couple of months with this virus. So one is we must ascertain that there is no virus in the body. The second is the damage it causes to the lungs, as we were hearing, is not something that would always recover when the virus goes away. So we must also see that the inflammation or the damage that virus is causing is not ongoing in the body. And the third is, it is not necessary at this time when this new season has come in that all the symptoms that he is having is necessarily related to COVID. There is always a possibility that on top of COVID, he gets something else. So under these circumstances, the best is he should consult the person who has treated him, or the person he can take teleconsultation and find out which of the 3 categories does he belong to. बिल्कुल। और अब रविशंकर हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। जी रविशंकर, पूछिए अपना सवाल। Okay, we'll request the caller to try and connect with us again, but in the meantime there is another question that's come in on our Facebook page. Dr. Rupali, would you like to respond to this? What food intake should a person take post-COVID if the person is elderly? Okay, so there are no specific dietary restrictions or advice after you recover from COVID. So whatever normal healthy food you were taking before COVID, the same you can continue to have after COVID. There's no special or extra additional advice in the form of dietary restrictions or anything else. The only thing is the food should be fresh, freshly cooked. It should not be a stale food kept in the refrigerator. That is one important thing. You can increase the intake of the fresh fruits. Dry fruits can be consumed. Some healthy diets like the healthy doodh, we often keep telling. Increased use of ginger, garlic in your regularly cooked food. So that is what is advised, but nothing specific or extra that we need to do for that. बिल्कुल, केवल जो वृद्ध व्यक्ति हैं उन्हीं के लिए नहीं, सीनियर सिटीजन ही नहीं, जो आमतौर पर पोस्ट कोविड जो रिकवर होते हैं, पोस्ट कोविड डाइट के बारे में बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं। ऐसे ही एक व्यूअर हमारे साथ धीरज जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव से, उन्होंने पूछा है कि क्या कुछ उनको जो है अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा भी जो पोस्ट कोविड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे बॉडी एक्स हैं या और भी कई बार फीवर की बात होती है, कई बार लोग खांसी के लिए शिकायत करते हैं, तो क्या कुछ वो ले सकते हैं डाइट के साथ साथ मेडिसिन भी, क्या कुछ उन्हें प्रिस्क्राइब की जाती है जिससे कि इस तरह की समस्या ना हो और वीकनेस जो है वो एक कॉमन सिम्टम है इसके बाद, तो उससे भी रिकवर हो पाए। डॉक्टर पुनीत, ये डाइट के लिए जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया है कि
जो भी डाइट ले रहे हैं, अगर आप बीमारी से ठीक हो गए तो उसके बाद आपको कोई विशेष परहेज की जरूरत नहीं है। जो आवश्यक है वो ये है कि आप एक स्वस्थ, पौष्टिक और बैलेंस डाइट लें उस चीज़ के लिए। दूसरी बात ये है कि देखिए बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स की बॉडी को जरूरत पड़ती है, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, उसके द्वारा मिलती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी डाइट ले रहे हैं तो उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, और जो भी डाइट है आपके उम्र के हिसाब से, और अगर आपको अन्य कोई बीमारी पहले से है तो उसके हिसाब से पूरी तरीके से बैलेंस्ड और पौष्टिक डाइट आप लें। विशेष कोई ऐसी डाइट नहीं है जिसको अलग से दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति को कमजोरी है और डिस्चार्ज होते समय जो उनके चिकित्सक हैं या जो डाइटिशियन है उन्होंने किसी विशेष खाद्य पदार्थ के बारे में बताया है, या कैलोरी इंटेक ज़्यादा बताई हुई है, या मिनरल विटामिन्स की इंटेक ज़्यादा बताई हुई है, तो उसको जारी रखें। बहुत सारे व्यक्तियों में जिस समय कमजोरी रहती है तो ये देखा गया है कि अगर वो कुछ ऐसा बीच बीच में पौष्टिक चीजें लेते हैं और तरल पदार्थ लेते हैं, शिकंजी है या छाछ है या जो भी वहाँ पे नारियल का पानी है, उस प्रकार की चीजों को लेने से एक तो बॉडी का हाइड्रेशन अच्छा रहता है, थोड़ी सी आपको स्वस्थ जो फीलिंग है उस चीज की फीलिंग आती है। तो डाइट के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि बैलेंस लें, फ्रेश डाइट लें, फल और सब्जियों का सेवन जरूर करते रहें, क्योंकि मिनरल्स और विटामिन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, आपकी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके अलावा अगर आपके चिकित्सक ने कोई भी विशेष आपको डाइट बताई है या आपको दवाइयाँ बताई हैं, उनका नियमित रूप से आप उस अवधि तक सेवन करें जब तक के लिए आपको वो प्रिस्क्राइब की गई है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज महाराष्ट्र से। जी नीरज, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। वाराणसी से, मैं महाराष्ट्र में, बनारस से। बताइए। सवाल ये था कि जो अपना दवाएं जो डॉक्टर साहब लोग लिख रहे हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, उसमें उन्होंने लिखा, मान लीजिए स्टेरॉइड्स जो उसके बाद इनहेलर, तो मैं उसको कितने दिन तक लेना है? और मैं 2 तारीख को मेरे को एक सिस्टम आया था, 25 को गया, तो उसमें मैं क्या नोटिफिकेशन तो मेरा आया है, मैं उसको क्या करें, आगे क्या प्रिकॉशन? ठीक है, बने रहिए आप फोन पर। डॉक्टर नरेश, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? I couldn't hear him clearly. जी, फिर से पूछिए अपना सवाल नीरज जी, और थोड़ा टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और थोड़ा साफ सुनाई दे इसकी कोशिश करिए। मैम, जो मेरा सवाल ये था कि मेरे रिपोर्ट सारी निगेटिव थी, लेकिन जैसा सर ने बताया सीटी में पैसे दिख रहे, तो ट्रीटमेंट मैम 21 डेज का हो गया है, उसके बाद भी अभी क्या लेना चाहिए या क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए? स्टेरॉइड जो है भी चल रही है और एक इनहेलर, तो ये कंटिन्यू करना चाहिए या बीच में? देखिए, जहाँ तक भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सीधे ले चलते हैं। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। मित्रों, आज जो हम आपसे बात करने जाने वाले हैं वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू रेडिकल अलायंस के बारे में। इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू रेडिकल अलायंस की शुरुआत न केवल केरल में बल्कि देश के अन्य जगहों पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चुकी है। वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तो देश बहुत आश्चर्यचकित था कि कांग्रेस के झंडों से ज्यादा जमाते इस्लामी के झंडे क्यों दिख रहे हैं। काफी लोग आश्चर्यचकित थे कि इस सेकुलर पार्टी का कौन सा रेडिकल अलायंस हुआ है। वैसे तो लोगों ने यह भी देखा था कि आजादी के बाद पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी, और खास तौर से अपने आप को नेशनल और नेशनलिस्टिक और सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी कहने वाली कांग्रेस पार्टी
ने मुस्लिम लीग से भी समझौता किया था और सरकार का, सोनिया गांधी जी ने सरकार का हिस्सेदार भागीदार बनाया था। उस समय कहा गया था अलायंस का कंपल्शन है, मजबूरी है। जमात इस्लामी से भी हो सकता है कि यही राजनीतिक मजबूरी हो। पीएफआई से भी जो समझौते दिखाई पड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें भी कौन सी मजबूरी है वो भी कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, बताना चाहिए। और सबसे मजेदार बात यह है कि पूरे देश में, और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जमाते इस्लामी नाम के इस संगठन की गतिविधियां खून खराबे से भरपूर दिखाई पड़ती हैं, आतंक से भरपूर दिखाई पड़ती हैं, मानवता के खिलाफ दिखाई पड़ती हैं। और जब मोदी जी की सरकार आई तो कश्मीर में जो इनकी गतिविधियां थी उसके चलते इन पर प्रतिबंध भी लगाया गया। अभी कांग्रेस की सुविधा के लिए जमात इस्लामी ने एक राजनीतिक दल का भी गठन कर डाला है, जिसका कि नाम शायद कोई वेलफेयर या क्या पार्टी रखी है, वेलफेयर पार्टी रखी है, ताकि वो बता सकें कि साहब जमात इस्लामी से तो हमारा समझौता नहीं है, लेकिन ये जो वेलफेयर पार्टी है ये हमारी दोस्त है। ऐसे संगठन जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हों, आतंकवादी संगठनों और उनकी जिहादी मानसिकता को प्रमोट कर रहे हों, उनका कांग्रेस के साथ रिश्ता कांग्रेस की इस मानसिकता, बदली हुई मानसिकता को प्रदर्शित कर रहा है। अभी जब पीएफआई के लोग तमाम तरह की गतिविधियों में पकड़े गए, खासतौर से अभी उत्तर प्रदेश या कुछ अन्य जगहों पर, तो कांग्रेस के जो है वो युवराज पहुंच जाते हैं उनको सांत्वना देने कि आई एम विद यू, आप चिंता मत करो। मित्रों, आज कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को सेकुलर पार्टी अभी तक कहलाई जाती थी, अपने को कहती थी, वो जिस तरह से रेडिकलिज्म को सत्ता की लालच और ललक में रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे रही है या रेडिकलिज्म को संरक्षण दे रही है या स्पॉन्सर कर रही है, मेरा आरोप है कि स्पॉन्सर कर रही है, वो अपने आप में बहुत खतरनाक मानसिकता है। सरकार, आप देखते होंगे कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे जो परिवार का घोंसला और पप्पू का चोचला, तो परिवार का घोंसला और पप्पू के चोचलों से भरपूर ट्विटर सुबह सुबह दिखाई पड़ता है आपको। हम सरकार से ये पूछते हैं, हम सरकार से ये पूछते हैं, हम सरकार से ये जानना चाहते हैं। अरे भैया, ये तुम्हारी चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे जो ये चल रही है जमाते इस्लामी से, पीएफआई से और संगठनों से, वो भी तो बता दो आप। सवाल के साथ साथ जवाब भी दे दो आप। कई जगह पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन का हिस्सा है, गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो या कुछ जगहों पे और। हम राहुल गांधी जी से या कांग्रेस पार्टी से तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो तो जमाते इस्लामी और पीएफआई की मदद करते दिखाई पड़ेंगे। हम तेजस्वी यादव जी से जरूर पूछना चाहते हैं, क्योंकि बिहार का कई इलाका ऐसा है जो जमाते इस्लामी के प्रभाव वाला है या कुछ और उससे जुड़े हुए संगठनों के प्रभाव वाला है। क्या कांग्रेस पार्टी के साथ तेजस्वी यादव जी की पार्टी
का जमाते इस्लामी और पीएफआई के साथ भी समझौता हुआ है, क्योंकि कांग्रेस तो उनके साथ हो गई है, अब समझौते का हिस्सेदार है, भागीदार है। ये बात तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता और देश की जनता को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि बिहार के कई ऐसे, खुद बिहार की सरकार कह चुकी है, केंद्र में कई बार ऐसा आ चुका है कि कई ऐसे वहां इलाके हैं जो इन लोगों के कहीं ना कहीं इनके द्वारा वहां पर गतिविधियां डायरेक्ट इनडायरेक्ट चलती हैं। तो आप देख रहे थे भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस से कई सवाल पूछे हैं और कहा गया है कि किस तरह से कांग्रेस जो देश विरोधी संगठन है उनके साथ साठगांठ कर रही है, चाहे वो जमाते इस्लामी हो, चाहे वो सीएफआई हो, और इसके साथ ही साथ उन्होंने राजद पर भी एक सवाल दागा है कि जिस तरह से कांग्रेस के साथ बिहार में राजद ने समझौता किया है, तो क्या जमाते इस्लामी और सीएफआई से भी समझौता किया है। इसके साथ ही बेहद कड़े सवाल उठाए हैं मुनमुन। Absolutely. So some tough questions being asked by the BJP of the Congress. Well, you were watching Dr. Speak, and we are in discussion with experts, with doctors, that is, on various aspects of COVID-19. And there was a caller, in fact, who had joined us. Would you like to respond to that, Dr. Naresh, if the caller is listening to us, if you could make out the question? Yeah. You see, what I could figure out was Neeraj was wanting to know that he has taken treatment and maybe for 3 weeks and he has tested negative. Should he continue taking steroids? That was the gist I could figure out, because it was not coming out very clear. So I would concentrate on whether one should continue with steroids after they have recovered. Now, first thing to be accepted is that there is no specific scientifically proven treatment for killing this virus as of today. We might get it. Steroids are used for a different effect, what we call the anti-inflammatory effect. Steroids are very good drugs, but they also have side effects. Steroids in cases of COVID-19 are proven to be effective when given in hospital setting. That means patients are sick, really sick, they need oxygen and other supportive care. The patients who are at home quarantine or mildly symptomatic or asymptomatic do not need any steroids. Therefore, once they recover, the chances of their continuing the steroids, if they were not hospitalized, does not arise. But they should consult with their doctors whether they were given steroids, because steroids are given also for bronchial asthma. So there might be bronchial asthma which might be requiring it, but also if somebody has diabetes, it could get worse. So steroids are dual-edged swords. They should not be used unnecessarily, and for a given specific case, they must consult, but in general, they don't need it when they are ambulatory. बिल्कुल, नीरज को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़े हैं, उनके मुताबिक कुल रिकवरी में आधे से ज़्यादा योगदान टॉप के 4 स्टेट्स का है, 4 राज्यों का है, और जो एक्टिव केसेस का 44% है वो भी इन्हीं 4 राज्यों से है। तो सबसे पहले तो ये कि इन 4 राज्यों में क्या कुछ विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत, और दूसरा जिस तरह से रिकवरी रेट इन्हीं का है और जो एक्टिव केसेस हैं 44% इन्हीं में से हैं, तो क्या जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर भी दिखाई देता है, डॉक्टर रूपाली? हाँ जी, देखिए इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट वो तब आएगा हम 60 से 70% ये ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। अभी लगभग 44% है, तो जैसे जैसे आंकड़े बढ़ेंगे तो हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे, और उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। डॉक्टर रूपाली, जो 44% है वो बता रहे हैं जो टोटल एक्टिव केसेस हैं वो 44% इन्हीं स्टेट से हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि 44% इन्हीं में, मतलब इसमें जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो 44% है, और इसके अलावा और भी लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे। तो काफी हद तक इन एरियाज में, इन 4 स्टेट्स में जो है, काफी हद तक लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, बट अभी भी जब तक हम 60 या 70% का जब तक दर नहीं पार कर लेंगे, तब तक हर्ड इम्यूनिटी की बात कहना मुश्किल है।
मैं आप टोटल नंबर ऑफ केसेस के बारे में बात करना चाह रहे हैं, बट ये जो केस, जो 4 जगह जो आप बता रहे हैं, जो टॉप 4 जो हमारे स्टेट्स हैं, वो वही स्टेट्स हैं जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, हेल्थ रिसोर्सेज बेटर हैं, तो टेस्टिंग भी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा टेस्टिंग हो रही है उतना ज्यादा आंकड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और इनमें मेट्रो सिटीज है तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ इन 4 स्टेट्स के आंकड़े जो है बाकी जगह के मुकाबले अभी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बट इवेंचुअली सूनर और लेटर बाकी पार्ट्स में भी जैसे जैसे बीमारी फैलेगी वहां भी आंकड़े बढ़ेंगे। जैसे कि पहले भी कहा गया कि समय के साथ साथ अलग अलग जगह के आंकड़े बढ़ेंगे। अभी इन 4 स्टेट्स में है, बट जैसे जैसे ये 4 स्टेट सेटल होंगे उसके बाद बाकी जगह के आंकड़े भी बढ़ेंगे, अगर उससे पहले वैक्सीन नहीं आएगी तो। It's going to be a long haul, in other words. Dr. Puneet Mishra, there's a caller who's joined us. विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांगड़ा से। जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मेरा सवाल यह है कि कुछ बीमारियां हैं आजकल जो स्टेरॉइड देने से ठीक हो जाती हैं, जबकि स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो वैसे ही अगर कोविड की दवाइयां बन रही हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो कोविड की जो वैक्सीन बन रही है उनको देने में क्या हर्ज है? आपका सवाल जो है, आपने पूछा कि कोविड की वैक्सीन को देने में क्या हर्ज है, ये सवाल है आपका? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, अभी तक जो कोविड की डिफरेंट वैक्सीन है वो परीक्षण की स्टेज में है। कोई भी वैक्सीन जो है, एक आप जो रूस की वैक्सीन है उसको आप अगर छोड़ दें तो कोई भी अभी लाइसेंस नहीं हुई है। होता क्या है कि जो वैक्सीन परीक्षण की प्रक्रिया है काफी लंबी प्रक्रिया है, और हमारा जो मॉडर्न मेडिसिन सिद्धांत है इसमें हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किसी को कोई नुकसान नहीं हो, डू नो हार्म, कि ऐसा नहीं हो कि हम वैक्सीन दें और उससे किसी को नुकसान पहुंचना प्रारंभ हो जाए। तो सबसे पहले जो ट्रायल करते हैं, जिसे हम फेज 1 ट्रायल कहते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि वैक्सीन जो बनाई गई है वो सेफ है या नहीं है, उसका सेफ्टी मार्जिन कितना है। हेल्दी वॉलंटियर्स में हम परीक्षण करके देखते हैं। उसके बाद जो स्टेज 2 आती है उसमें हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये देखते हैं कि उसमें इम्यूनोजेनिसिटी कितनी है, आखिर वो कितनी प्रभावशाली है, कितने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर पा रही है, बीमारी को कैसे रोक पा रही है। और उसके बाद हम स्टेज 3 की जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं उसमें आते हैं, और वो बड़े स्तर पर होता है, और उसमें हम सेफ्टी भी देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि उन व्यक्तियों में इसका कितना प्रभाव हुआ है बीमारी को रोकथाम करने के लिए। उसके बाद ही किसी वैक्सीन को लाइसेंस दिया जाता है। जहां तक अभी कोविड की वैक्सीन है, कुछ वैक्सीन फेज 3 में जरूर चल रही हैं, लेकिन अभी उनका फेज 3 का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बीच बीच में ये खबर आती रहती है कि वैक्सीन का ट्रायल कुछ साइड इफेक्ट हुए हैं, तो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन का भी ट्रायल रोका गया है, फिर जो अमेरिका में वैक्सीन है उसका भी कुछ दिन के लिए ट्रायल रोका गया है, क्योंकि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन देने का कोई भी गलत परिणाम नहीं हो, उसको कोई बीमारी नहीं हो, कोई मृत्यु नहीं हो। और साथ ही साथ जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वैक्सीन के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए, कम से कम 50% इफिकेसी होनी चाहिए। तो जब कोई भी वैक्सीन इस मानक पे पूरी तरीके से खरी उतरेगी कि कम से कम 50% लोगों में बीमारी रोक रही है, इफिकेसी है उसकी, और वो कोई ऐसा नुकसान नहीं कर रही है जिसकी वजह से उस वैक्सीन को ना दिया जा सके, तभी वैक्सीन को हम किसी व्यक्ति को दे पाएंगे। अभी जिन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है वो परीक्षण के तौर पे दी जा रही है, और जितनी भी उसकी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए, उन व्यक्तियों को विशेष निगरानी में रखते हुए इन वैक्सीन को मानव परीक्षण किया जा रहा है। बिल्कुल, जो 100% सुरक्षा है वो सुनिश्चित करके ही वैक्सीन दी जाएगी, जिससे कि किसी तरह का नुकसान ना हो। विनोद जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और फेसबुक पर भी एक व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये देवदत्त विश्वकर्मा हैं, जो पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने स्मार्टफोन्स, टीवी, रिमोट और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको सैनिटाइज करने का। तो डॉक्टर गुप्ता आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जितनी चीजें हैं इनमें जितने बैक्टीरिया होते हैं लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, और जितने इन्होंने आपने नाम लिए हैं इसमें मोबाइल फोन सबसे ज्यादा है। तो पहली चीज तो ये है कि मोबाइल फोन आप लेके भी सब जगह जाते हैं, खांसते भी उसके ऊपर है, दूसरा भी उसी को पकड़ता है, आप भी पकड़ते हैं। तो एक तो ये है कि ये मान के चले कि ये सारी चीजें बैक्टीरिया या वायरस ले जा सकती है। पहले आप इसकी डस्टिंग करके निकाल देते हैं,
उसके बाद जिस चीज का आप साबुन पानी से क्लीनिंग कर सकते हैं, उससे बेहतर कोई आपके पास तरीका नहीं है। जैसे मैंने बोला कि इस वायरस का एक ब्लैंकेट होता है, कवर होता है, वो साबुन का जो भी डिटर्जेंट हो, कोई भी डिटर्जेंट वाला साबुन हो, उसको खत्म कर देता है आधे मिनट में। तो आप अगर वो कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। कहीं सैनिटाइजर है उसको कर लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप ये मान के चले कि ये पोटेंशियली इन्फेक्टिव चीज है, इसलिए मैं इसको ऐसी जगह नहीं रखूंगा जहां की मुझे दिक्कत कर सके। जहां पे आपने टिश्यू पेपर रखे हुए हैं, मान लीजिए फेस नैपकिन रखे हुए हैं, आप उसके ऊपर ही मोबाइल फोन रख देंगे तो सारे गंदे हो गए ना। तो ये आप एक प्रक्रिया नहीं है कि आपने सवेरे 6 बजे उसकी सफाई कर दी, नहाला धुला दिया और उसके बाद ठीक हो गया। ये आपको बराबर रखना पड़ेगा, और जितनी भी चीजें उनकी ड्राई क्लीनिंग मीन्स उसके धूल मिट्टी हटाना, साबुन पानी से कर सकते हैं वो करिए, सैनिटाइजर उसको डैमेज नहीं करता है उससे करिए, उसको बचाव करिए, और उससे किसी और को आगे रिस्क नहीं होने दीजिए। ये बहुत जरूरी है। कुछ चीजें हैं इनमें से जो कि आप दूसरी तरह से भी सैनिटाइज कर सकते हैं। आजकल यूवी लैंप आते हैं, जैसे मोबाइल होते हैं, आप उसमें भी रख सकते हैं। तो वो जिसके पास जैसी सुविधा हो वैसे कर सकता है, लेकिन आसान अच्छा तरीका, स्वच्छ तरीका, साबुन पानी, सैनिटाइजेशन, क्लीनलीनेस, और उसकी वजह से फैलाव को रोकना है। जी, there are also reports of the kind of behind the scenes work that is going on for the purpose of vaccine delivery. Dr. Rupali, your thoughts quickly on whether it's a reasonable expectation to expect a vaccine by July 2021, which Bharat Biotech is coming up with, and there could of course be others which could come before or later, and there is also the option of emergency use authorization, which some reports suggest the government could be looking at, so that an earlier use of a vaccine is possible, and how it's going to be distributed, starting from healthcare workers to maybe the elderly and those with comorbidities. Yes, so there's still a very long fight lying ahead of us. So not only the production of vaccine is important, how to give it to such a big population would be another big challenge for our country. So to begin with, I would like to say that the government would prefer to give it to the first line warriors like the healthcare professionals. Some people are saying that the databases of the frontline warriors is already being prepared by the government and the various institutes, so that whenever and as and when we have the vaccine, it is given to them on the priority basis. Then would be the elderly population and the children, and then would be the rest of the healthy adults. So it is still I would say it will really take a long time, at least 6 months or so. For next 6 months, it is very important that we take care of our own health, because next 6 months they are very crucial. We don't have our vaccines yet. It is the winter season, which is already a risk factor for all the respiratory illnesses, not only corona, but the others as well. So it is very important that we take very good care of ourselves, our family members, especially the elderly and the kids, during these 6 months of the winter season. Very important. And for the vaccine, we will have to wait for another 5 to 6 months minimum. So another 5 to 6 months is what we have to wait for, at least is what you are saying. Thank you, Dr. Rupali Malik, Dr. Naresh Gupta and Dr. Puneet Mishra for having joined us on this edition of Dr. Speak. बिल्कुल अपने डॉक्टर्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो बेहद विश्वास के साथ हमसे जुड़ते हैं, हमसे सवाल करते हैं। और ये सवाल आप प्रतिदिन कर सकते हैं क्योंकि रोज़ हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। और फिर आपसे यही कहना चाहेंगे कि हालांकि जो आने वाले कुछ महीने हैं वो थोड़े से सेंसिटिव ज़रूर हैं, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये स्टडीज़ में भी आया है कि जिस तरह से, और डॉक्टर्स ने भी बताया है कि जहाँ पर ज़्यादा केसेस हैं वो इस वजह से हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, चाहे उसमें पॉपुलेशन हो, चाहे वहाँ टेस्टिंग की संख्या हो, और रिकवरी रेट भी वहाँ से बहुत अच्छा आ रहा है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो सावधानियाँ बरतने की बात कही है वो बरतनी है। जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती है आपको हाथ धोते रहना है, इसके साथ ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है जो लगातार आप मेंटेन कर रहे हैं और इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो मास्क है वो लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का हराना है तो मास्क ज़रूर लगाना है, तो मास्क ज़रूर लगाएं। Keep your mask up. Thanks for watching. Namaskar. नमस्कार।